हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Instant writ petition raises a challenge to the order dated 26/7/2018 in bracket annexure P17 bracket out, in terms of which request of the petitioner seeking a certificate from the Deputy Commissioner Gurdaspur that his son Nikhil Mahajan is the grandson of Varindra Kumar, a terrorist affected victim, has been declined. Full stop para. Counsel for the parties have been heard and the pleadings on record have been perused. Full stop para. Apparently, son of the petitioner, namely Nikhil Mahajan, had applied for admission to the MBBS course for the session 2018 in pursuance to an admission process initiated by the Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot. Full stop. As per prospectus issued by the university appended at annexure P3, a reservation for state quota seats in government medical / dental colleges is envisaged, and 1% reservation is provided for children / grandchildren of terrorist affected persons. Full stop. The prayer of the petitioner for issuance of the certificate in favor of the son was to avail of such reservation quota. Full stop. As per the prospectus itself, to avail of such reservation, a certificate was to be produced in respect of children / grandchildren of terrorist affected / displaced persons, to be issued by the Deputy Commissioner / GA to Deputy Commissioner of the respective district. Full stop para. Perusal of the impugned order dated 26/7/2018 passed by the Deputy Commissioner Gurdaspur reveals the basis for declining the request of the petitioner. Full stop. It has been stated in the impugned order that, as per policy instructions issued by the state government, red cards are issued to family members of general public killed during terrorist incidents, but no red card is being issued to family members of government / police officials killed during terrorist incidents. Full stop para. In the considered view of this court, the impugned order dated 26/7/2018 in bracket annexure P17 bracket out, passed by the Deputy Commissioner Gurdaspur, suffers from the basic infirmity of non-application of mind. Full stop para. The request and prayer of the petitioner was not for issuance of red card. Full stop. The request was only for son of the petitioner to be certified as the grandson of Varinder Kumar, and who in turn was killed by terrorists on 22/2/1980. Such aspect has been completely overlooked by the Deputy Commissioner Gurdaspur while rejecting the prayer of the petitioner. Full stop para. With regard to the factual position, it has gone undisputed that Shri Varindra Kumar
father of the petitioner herein, was killed by terrorists on 25/1/1988 while performing duties in the capacity of a head teacher posted at government primary school, Rangilpur, Tehsil Batla, district Gurdaspur, full stop. There is also no dispute that Nikhil Mahajan is the son of the present petitioner, full stop, para. The Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot, has been assigned the onerous task to undertake the admission process to MBBS/BDS courses in the government medical colleges/dental colleges for the session 2018 in pursuance to a decision taken by the state government itself, full stop. Over. तो फ्रेंड्स ये 90 की स्पीड में डिक्टेशन हो चुका है, ठीक है। और अभी 4 दिन का गैप था, हमने पहले ही बताया था ना, कुछ काम पड़ जाएगा इस वजह से दे नहीं पाएंगे। तो चलिए, इसमें कौन से कोई नाम वगैरह आए हुए हैं ना। वरींद्र, निखिल महाजन, निखिल बनेगा ऑन द लाइन N K और डाउनवर्ड L, ठीक है। K को काट दीजिए ख के लिए, ये निखिल हो गया। थ्रो द लाइन L जाएगा क्योंकि निखिल है, ई की वॉवल है, ठीक है। वरिंदर अबव द लाइन V का स्ट्रोक और R अपवर्ड डबलिंग कर दीजिएगा, ठीक है। V R की डबलिंग, N का हुक और E की वॉवल आफ्टर में, ठीक है, R के आफ्टर में। ये वरींद्र हो जाएगा। कुमार तो केयर बनेगा, बताया आपको हमने। और कुछ है नहीं। फरीदकोट या तो 2 तरीके से बनेगा, या तो पूरा बनाइए F अबव द लाइन F अपवर्ड R, फिर D और फिर K हाफ, और K के आफ्टर में O की वॉवल, ठीक है। ये कॉट हो गया, फरीद कॉट। और एक तरीका है F बनाइए R अपवर्ड हाफ और K भी हाफ, ठीक है, और K के आफ्टर में O की वॉवल, ताकि आप F है, R हाफ है और K हाफ है, ठीक है। तो फरीदकोट हो गया। और कुछ है, देखते हैं। गुरदासपुर, तो गेआर बनाइए, गेआर D डाउनवर्ड जाएगा, थ्रो द लाइन, ठीक है। और इसी में सर्किल लगाकर P में R का हुक आपको बनाना है, ठीक है। जैसे स्पर होता है ना, स्पर मतलब सर्किल लगाकर R का हुक और P निकालना है पुर के लिए, गुरदासपुर, ठीक है। गे में R का हुक, गे आर D सर्किल और PR, गुरदासपुर, थ्रो द लाइन जाएगा ये। और इसमें कुछ आया है क्या? रंगीलपुर आया है ना, तो रंगील के लिए आप अपवर्ड R बनाइए और इसी में गे मतलब NG होता है ना, NG का स्ट्रोक, अंगा है ना, तो उसका बड़ा स्ट्रोक कर दीजिए, जैसे लगे कि उसमें L का हुक है, तो रंगिल हो जाएगा। और उसी में PR जोड़ दीजिए, P में R का हुक, रंगिलपुर। इतना करेंगे आप, समझ में आ जाएगा, आपको याद आ जाएगी आउटलाइन क्या है ये। बाटला पूरा बनेगा BT अपवर्ड L, दैट की वोवल आफ्टर में, ठीक है। तो ये हो गया। और चलिए तो फिर अब कमेंट सेक्शन पे आते हैं। कमेंट में हाँ, तो ये ऐसा है कि एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि ये MP हाई कोर्ट की वैकेंसी के लिए, एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा कि नहीं ये डिक्टेशन। तो बिल्कुल होगा, जितने भी 80 की स्पीड में कोर्ट के एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए ये काम करेगा, इसलिए परेशान मत होइए बिल्कुल भी। और MP के लिए भी हम कर देंगे, चिंता मत करिए, लेकिन ये उसमें भी यूज़फुल होगा, ठीक है। और कमेंट किसी ने किया है स्पीड कवर करने में दिक्कत आ रही है। देखिए स्पीड कवर हो जाएगी, उसमें हमेशा शॉर्ट हैंड में ना रेगुलरिटी का ही इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। अगर आप रेगुलर नहीं हैं अपनी पढ़ाई में और आप फिर ये आप सोचो कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है या कुछ हो नहीं रहा है, उसको बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये सिर्फ ना रेगुलर ना होने की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आपको एनी हाउ कुछ भी करके रेगुलर आपको रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और
ऐसे वैसे कमेंट्स की तरफ तो हम ध्यान भी नहीं देते हैं, बस कोशिश ये करते हैं कि आपको यूज़फुल नॉलेज मिलती रहे। स्पीड वाली इशू तो हमने बता दिया, आपको आंसर कर दिया कैसे करना है। रोज़ आपको करना है शॉर्ट हैंड, थोड़ा दिनों बाद, महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद अंगड़ाई लेती है, ठीक है। तो 3 महीने तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही होगा कुछ। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसको रेगुलरिटी अपनी बनाए रखिए, ताकि स्पीड में कभी कोई इशू ना आए, ठीक है। और सिंपलीसिटर का तो हमने बता दिया था क्या होगा। और पंजाब हरियाणा का जो एग्ज़ाम है वो देखिए दिसंबर में, कुछ भी होगा दिसंबर में हो जाएगा। डिस्क्रिपेंसी लिस्ट आ गई है, उनको कोई तैयारी करनी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन बाद वो डेट निकाल देंगे, ठीक है। और कैपिटल वर्ड्स और स्मॉल वर्ड्स की जो मिस्टेक है वो तो काउंट होती है, और पूरी एक मिस्टेक काउंट होती है, वो लोग अनाउंस कर देंगे, ठीक। तो कैपिटल को समझा कैसे जाता है, देखिए प्रॉपर नाउन ये सब जैसे अब किसी का नाम है ना, जैसे वरिंदर कुमार है, अब इसको आप स्मॉल तो करोगे नहीं, कैपिटल होगा, ये तो कॉमन सेंस है। लेकिन जैसे और कुछ आता है, सिविल पिटिशन नंबर वगैरह आ गया, तो देखिए जहाँ पे नंबर आता है उन उसके सारे जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल होते हैं। जैसे सिविल रिट पिटिशन नंबर, तो सिविल भी कैपिटल में, रिट भी कैपिटल में, पिटिशन भी कैपिटल में, नंबर भी कैपिटल में, ठीक है। लेकिन अगर केवल सिविल रिट पिटिशन के बारे में बात हो रही है, नंबर नहीं आ रहा है, तो वो स्मॉल में रहता है, ठीक है। थोड़ा सेंस लगाइएगा। नंबर किसी चीज़ का बताया जा रहा है, जैसे खाता नंबर, गाटा नंबर, हाउस नंबर, किसी चीज़ का नंबर आता है तो मतलब उसको पर्टिकुलर शो किया जाता है कि मैटर में, कि इसके बारे में बात हो रही है, तो वो ऑटोमेटिक कैपिटल में हो जाता है, ठीक है। लेकिन जिसके साथ नंबर नहीं आ रहा है वो स्मॉल में रहेगा, ठीक है। तो इससे आप इसको आइडिया लेने की कोशिश कीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब कैपिटल में होता ही होता है। ट्रायल कोर्ट हम लोग के यहाँ नहीं होता है कैपिटल में, ठीक है, वो स्मॉल में ही होता है। लेकिन आप लोग को अगर कोई डाउट हो तो कैपिटल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जज के नाम वगैरह या स्पेशल डिवीजन बेंच, ये सब कैपिटल में होता है, ठीक है। डिवीजन बेंच कैपिटल में होता है, डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट कैपिटल में होता है, ठीक है। तो आप लोग जो मैटर लिखते हैं ना, उसको वॉच ऑब्जर्व किया करिए कि इसमें लिखा कैसे है। ऐसा नहीं है, कुछ स्टेनोज से भी गलती होती है जो हाई कोर्ट में पोस्टेड हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पोस्टेड हैं, वो लोग कुछ गलत गलत जजमेंट डाल देते हैं तो वो छप जाता है, तो उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन आप लोग ऑब्जर्व करो, सुप्रीम कोर्ट केसेस को ऑब्जर्व करो, कोई भी केसेस निकलता है उसमें ऑब्जर्व करो क्या कैपिटल क्या स्मॉल बनाया हुआ है, ठीक है। जनरली ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। जो रेगुलर मैटर आप लिख रहे हैं बस उसमें ध्यान रखिए इसने कैपिटल क्या क्या बनाया है, जो हम टाइम टू टाइम बता ही देंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा, और पोस्ट जो भी डेजिग्नेशन होता है, पोस्ट होता है ना, वो भी कैपिटल में होता है ठीक है। तो ये सिस्टम है। और कौन से कमेंट हैं? और रही बात सीपीटी के लिए, उसके लिए वीडियो असल में थोड़ा काम इतना हो जाता है, बिज़ी हो जाते हैं, तो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन सीपीटी के लिए हमने आपको बताया ही हुआ है कि एक्सेल के जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक टॉपिक्स हैं, उनको आप कवर कर लो, उससे आगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। फिल हैंडर हो गया, बॉर्डर को बोल्ड और लाइट करना, और फार्मूला, जितने भी फार्मूले हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, एवरेज, लॉजिकल क्वेश्चंस, उसके फार्मूले आप इनको तैयार करो। और वर्ड में टेबल बनाना सीख लो, रोज़ कैसे बनाते हैं, रोज़ लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। वर्ड रैप टेक्स्ट कैसे करते हैं, ये सब कुछ बहुत सिंपल है। आप लोग को थोड़ा बस मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। वीडियो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वीडियो बना दें इसके ऊपर, मतलब एकदम अंदर से कोशिश करेंगे इसको बना दें। लेकिन अगर मान लीजिए ऊपर नीचे होता है कुछ, तो हम इसके लिए आपको कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा फावड़ा लेके ज़मीन की खुदाई शुरू करिए तो सही। मतलब आप मान लीजिए हमारे इंतज़ार में अगर आप रह रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे हों, कुछ ये सोचें कि नहीं भाई जब ये देंगे तब हम तैयार कर लेंगे, तो ऐसा मत करिए प्लीज़, ठीक है। क्योंकि टाइम ऊपर नीचे होता है, कभी डिक्टेशन हम शाम को डालते हैं, कभी सुबह डालते हैं, कभी दोपहर में डाल देते हैं, तो वो कोशिश हम ये करते हैं कि डाल दें, लेकिन जब हमारे हाथ ही में नहीं होता तो हम उस दिन नहीं डाल पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग रिलैक्स मोड में मत चले जाइएगा। आप लोग सीपीटी को
इतना हम बता रहे हैं आपको, इसको इतना ही आप कर लेंगे तो भी इसमें कम से कम आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। हमारे ख्याल से बस इतना तो होना ही होना है। इससे ज़्यादा जब आपका ये कवर हो जाएगा ना तो आपकी भूख बढ़ जाएगी, आपको लगेगा थोड़ा सा और नॉलेज ले लें एक्सेल की या वर्ड की, तो उसमें आप कंप्लीट कर लोगे अपना सिलेबस। ठीक है, तो आप थोड़ा करना शुरू तो करो आप, मतलब अपने से भी हाथ पैर थोड़ा चलाओ आपको। हम तो ट्राई पूरा करेंगे, लेकिन आप लोग आज से ही करना शुरू कर दो इसको। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी रिलैक्स मोड पे मत जाइएगा, क्योंकि ये भले 10 नंबर का पेपर होगा, 10 नंबर होंगे इसके, लेकिन बहुत क्रूशियल, मतलब बहुत ही टर्निंग पॉइंट वाला पेपर रहेगा ये 10 नंबर का। मतलब इसमें अगर क्वालिफाई बंदा नहीं है तो शॉर्ट हैंड उसकी निपट गई। ठीक है, शॉर्ट हैंड का कोई मतलब ही नहीं समझेंगे वो लोग, इसीलिए आपको इसको भी फुल एकदम अपना डेडिकेशन देना है। ठीक है, और 4 ही नंबर केवल लाने हैं, ज़्यादा हाई नंबर में मत पढ़िएगा, नंबर इसका कुछ ऐड वैड नहीं होता है। अब हमने ठीक से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ी, एक बार आप लोग रीडिंग मारट्टा लगाइएगा कि उसमें नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, नंबर इसका ऐड होता है कि नहीं। बाकी इसका होना हवाना है नहीं नंबर ऐड, तो इसको 4 नंबर केवल आपको मारना है, उसको बस इत्मीनान से मारिएगा आप, बाकी शॉर्ट हैंड। ठीक है, लेकिन जितना भी हम बोल रहे हैं ना, एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद करिएगा। ठीक, लेकिन लग जाइए तैयारी में। और चलिए फिर, ज़्यादा देर की वीडियो हो गई है तो आप लोग भी बोर हो रहे होगे। अब मिलते हैं अगले डिक्टेशन में। ठीक है, और चैनल वैनल को सब्सक्राइब वगैरह करवा दीजिए अपने दोस्तों से, आप और भी फैलाइए, और लाइक वाइक भी और ज़्यादा कर दीजिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच।